Hello kids, today we are going to learn 10th standard science 1 chapter number 3 chemical reaction and equations. Today topic is types of chemical reaction. In the last video we learned about the how to balance chemical equation. So now we will learn a type of chemical reaction. So chemical reaction are classified into the following four types in accordance with the nature and their number of reactant and product. So there are four types of chemical reaction: combination, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. So in the exam may be asked to write down the types of chemical reaction and their names. So you have to just write down four different chemical reactions. मतलब हम एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिखो, तो ये चार पॉइंट्स लिखने हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें हम एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये सारे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सारे टाइप्स नहीं हैं केमिकल रिएक्शंस की. सिर्फ चार ही टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reactions. Now combination reaction: when two or more reactant combine in a reaction to form a single product, it is called a combination reaction. मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. ये याद रखो, कॉम्बिनेशन मतलब टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड इट फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होकर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं. और ये हमें ये याद रखना है क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में याद रखना है कि अगर दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट से सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. So try this: the apparatus, test tube, glass rod, beaker, etc. Chemicals: hydrochloric acid, ammonia solutions like lime, etc. So activity: take a small amount of hydrochloric acid in a test tube, heat the test tube, dip a glass rod in an ammonia solution and hold on the top of the test tube. You will observe a wild smoke emanating from the tip of the glass rod. What must have happened? Due to the heating HCl, vapor started coming out from the test tube and NH3 gas came out from the solution of the glass rod. The ammonia gas and hydrogen chloride gas reached to form the ammonium chloride in the gaseous state first, but immediately due to the condensation process at the room temperature, it got transferred into the solid state. As a result, white smoke was formed. The chemical equation for this is as shown in the as shown in follow. Ammonia means NH3. So ammonia react with hydrogen chloride. Ammonia react with hydrogen chloride means HCl. It form ammonium chloride. So you can see the chemical equation. There is a two reactant, and combined with the two reactant, combination of two reactant, it forms single प्रोडक्ट दैट इज द अमोनियम क्लोराइड. जैसे कि हम देख सकते हैं दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना है जो है अमोनियम क्लोराइड. सो ये एक्टिविटी में क्या है कि व्हेन अमोनियम सोल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोराइड or HCl, then ammonium chloride is formed and white smoke release, and after the immediately due to the condensed process happened at the room temperature, it got transferred into the solid state. So as a result white smoke was formed. मतलब जब अमोनिया और HCl रिएक्ट होते हैं तब अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है और एट द रूम टेम्परेचर वो कूल होने के बाद तुरंत सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जिसमें से वाइट स्मोक रिलीज होता है. मतलब जब अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इमीडिएटली अमोनियम क्लोराइड
बनने के बाद वो रूम टेम्परेचर में कंडेंस होता है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हेन द अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट, सो व्हाट विल बी अ फॉर्म? सो योर आंसर शुड बी अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म एंड इट color is white smoke. Why white smoke? Because after the reaction of ammonia and hydrogen chloride, it converted into a ammonium chloride, and immediately it converted into ammonium chloride because of at the room temperature is condensation processes happen and it converted into a solid state. The color is white smoke. तो पढ़ते टाइम पे हमेशा ये याद रखो, खुद से क्वेश्चन करो कि अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर ये रिएक्शन है तो ये रिएक्शन में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी कभी सिर्फ रिएक्शन गिवन होता है, प्रोडक्ट लिखना होता है हमें, या फिर इसके फिजिकल स्टेट लिखने होते हैं। कभी कभी रिएक्शंस प्रोडक्ट दिया होता है, कौन सी चीज़ें फॉर्म हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कौन से कलर का हो रहा है, वैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि अमोनिया एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सो अमोनियम क्लोराइड। कौन सा कलर होगा, वाइट स्मोक। क्यों होता है वाइट स्मोक? बिकॉज द रूम टेम्परेचर इट कंडेंस, रूम टेम्परेचर की वजह से उसके कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो पढ़ते टाइम पे हमेशा ये सारी चीज़ें याद रखनी है ऐसे। Second activity, hold a manganese strip in pair of tongue and ignite. On burning in air, white powder of magnesium oxide is formed. Their reaction can be written in the following equation as shown below. में एक मैग्नीज स्ट्रिप होगा और मैग्नीज स्ट्रिप को इग्नाइट करेंगे, मतलब जलाएंगे तो वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मीन्स व्हेन द मैग्नीज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब मैग्नीज कंबाइन होता है ऑक्सीजन में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो वाइट पाउडर का वाइट पाउडर्स में रहता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म एज ए सिंगल प्रोडक्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो ये याद रखना है कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कलर क्या होता है, वाइट पाउडर। टेक अ वाटर इन अ बीकर अप टू अ हाफ of its capacity, add a few pieces of black lime means calcium oxide to it. Calcium hydroxide is formed by the combination of calcium oxide and water with generation of large amount of heat. Means when एक बीकर में, हाफ बीकर में वाटर लेंगे, उसमें शेक लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स करेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वो लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट करेगा। सो मतलब एक बीकर लेना है, उस बीकर को हाफ वाटर से फिल करना है, भरना है और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स करने के बाद उसमें क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट जनरेट a large amount of heat also. That is the also example of combination reaction. So sometimes in the exam may ask the questions कि when calcium oxide react with water, so what will be a form? So your answer is calcium hydroxide and it generate a large amount of heat. मोस्टली एग्ज़ाम्स में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम कितना अच्छे से रट्टा मार सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एग्ज़ाम में कितना किसने अच्छे से रट्टा मारा वो चीज़ नहीं होता है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब तो स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसे और किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो यू कैन इजीली राइट, आराम से लिख सकते हो। किसी भी टाइप का कैसे भी क्वेश्चन आने दो, अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके आया है कि व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो इजीली लिख सकते हो कैल्शियम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो पढ़ते टाइम पे ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि एक क्वेश्चन कितने टाइप्स के आ सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन ईच
ऑफ द एबो रिएक्शन। सो जितने भी अभी तक एक्टिविटी हमने देखी रिएक्शंस, तो उसमें रिएक्टेंट कितने थे? 2 रिएक्टेंट थे। और प्रोडक्ट कितने फॉर्म हुए? 1। नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। So try this apparatus: evaporating dish, Bunsen's burner, etc. Calcium, chemical, sugar, calcium carbonate, sulfuric acid. Now procedure: take some sugar in evaporating dish and heat it with the help of Bunsen's burner. After some time, you will get the formation of bond of a black substance. Exactly what must have happened in this activity? Black substance is a carbon. So here is a sugar, means C12H22O11. ये याद रखो, शुगर का केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? केमिकल C12H22O11. In the presence of heat, it converted into a कार्बन प्लस वाटर. अगर हम शुगर को गर्म करेंगे तो कार्बन ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा और वाटर रिलीज करेगा. सो 1 रिएक्टेंट एंड 2 प्रोडक्ट और मोर देन 2 प्रोडक्ट, मतलब एक ही रिएक्टेंट होगा और उससे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो वो क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. याद रखना है, अपोजिट होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में 2 रिएक्टेंट होते हैं या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. बट डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट है बट 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा. So in the above activity, a single reactant sugar is divided into 2 substances, carbon and water. So this reaction in which there is only one reactant giving rise to 2 or more products is called decomposition reaction. तो याद रखना है, 1 reactant, 2 or more than product, it's called decomposition reaction. टेक्स्ट बुक रीड करते टाइम पे सारे जितने भी डायग्राम्स है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे कि उस डायग्राम में कौन से केमिकल्स यूज़ किया है, उस डायग्राम का नाम क्या है और इस डायग्राम के थ्रू हमें क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है. क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ये आते हैं. ऑब्जर्व, राइट द नेम ऑफ द डायग्राम, लेबल द डायग्राम. तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं. हम जस्ट गो थ्रू करेंगे, पेज टर्न करते जाएंगे, तो फिर उसका मतलब नहीं. टेक्स्ट बुक रीड करते टाइम ईच एंड एवरी पॉइंट्स केयरफुली रीड करना है. इवन डायग्राम्स को भी केयरफुली ऑब्जर्व करना है. तो यहाँ पे ये जो डायग्राम्स दिया है उसका नेम क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. राइट द नेम ऑफ द, नेम नहीं दिया रहेगा तुम्हें, वो तुम्हें आंसर लिखना होगा. तो डायग्राम अगर तुम्हें पता है, समझ में आया है कि क्या है, तो लिख सकते हो आंसर. क्वेश्चन ऐसे आता है, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट डाउन द नेम ऑफ द डायग्राम. तो नेम ऑफ द डायग्राम क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट, फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर एंड प्रोसीजर: टेक सम कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, फीड अ बेंड ट्यूब to this test tube with the help of rubber cork. Insert the other end of the bent tube in the freshly prepared lime water taken in the other test tube. Heat the powdered calcium carbonate in the first test tube strongly. The lime water will turn milky. Means एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे और बेंड ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में रबर कॉर्क के हेल्प से फिट करेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेंगे और फिर कैल्शियम कार्बोनेट वाले टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे. तो हीट करने के बाद लाइम वाटर वाले जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर चेंज होगा और वो कलर कौन सा होगा? मिल्क कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब 2 टेस्ट ट्यूब है, एक कैल्शियम कार्बोनेट का और एक लाइम वाटर का. और उन दोनों को अटैच किया है विद द हेल्प ऑफ रबर कॉर्क विद अ बेंड ट्यूब, एक बेंड ट्यूब के थ्रू, और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे. सो जो लाइम वाटर है उसका कलर किस में कन्वर्ट होगा? मिल्की में. दैट इज द डीकम्पोजिशन
of calcium carbonate. So we saw in the above activity the calcium carbonate undergoes the decomposition reaction and the carbon dioxide gas form turn the lime water milky, equation 16, and the second product of the reaction, the calcium oxide powder, remain behind in the first test tube. And similarly in the another reaction, equation 17, hydrogen peroxide naturally undergoes slow the decomposition into the water and oxygen, and both the reactions are example of decomposition reaction. We have studied in the previous standard that the water decomposes into the hydrogen and oxygen gas on passing the electric current through the acidulated water, and this decomposition takes place by mean of electrical energy, therefore it's called the electrolysis. Means when the water decomposes in hydrogen and oxygen in the presence of electric energy or electric current, it's called electrolysis. मतलब जब भी वाटर को हम डिसोशिएट करेंगे, डिकम्पोजिट करेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब वाटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस। सो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस? सो व्हेन the water are decomposed into hydrogen and oxygen in the presence of electric current are passing a electric current, so it's called electrolysis। और ये एग्जाम्पल लिखना है। The chemical reaction in which two or more products are formed by a single reactant, it's called decomposition reaction. That is the definition. When the chemical reaction, the chemical reaction in which two or more than two products are formed, it's called a form from the single reactant, it's called a decomposition reaction। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो उसे decomposition reactions कहते हैं। Many degradation process takes place in the nature surrounding us. Organic waste is decomposed by the organic or microorganism, and as a result manure and biogas are formed. Biogas is used as a fuel। तो जब वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो मैन्यूर एंड बायोगैस में कन्वर्ट होता है, और बायोगैस एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं। So biogas is used as a dash. So biogas is used as a fuel. Now displacement reaction. We saw in the beginning in the chapter that adding a zinc dust to blue colored copper sulfate solution, a colorless solution of zinc sulfate is formed and heat is generated. See the equation 3 for this reaction. For that we learn that the zinc ion formed from zinc atom take the place of copper ion in the copper sulfate, and copper atom formed from the copper ions come out. It means that zinc displaces copper from CuSO4. The reaction in which the place of ion, a less reactive element in compound, is taken by another more reactive element by the formation of lone ion, it's called displacement reaction। So displacement reaction का मतलब है जब जिंक डस्ट को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में, ये एग्जांपल बता रही हूँ मैं अभी, कि जब जिंक डस्ट को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं तो कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म होता है और जिंक सल्फेट और हीट जनरेट होता है, जैसे कि Zn प्लस CuSO4। Zn मतलब जिंक, CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है ZnSO4 और कॉपर अलग हो जाता है। तो जब किसी रिएक्शन में कंपाउंड एलिमेंट्स में, कंपाउंड मतलब टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर एक एलिमेंट हुआ, सल्फेट एक एलिमेंट हुआ। सो कॉपर सल्फेट मतलब ये दोनों कंबाइन हो गए तो क्या हो गया, कंपाउंड। सो यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि इन कंपाउंड द लेस रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस बाय द मोर रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब जो कंपाउंड में
जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा उसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। सो कॉपर सल्फेट में कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो उसे कौन रिप्लेस कर रहा है, जिंक। जैसे कि CuSO4 प्लस Fe मतलब फेरस। सो कॉपर इज ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, सो कॉपर की जगह पे क्या आ जाएगा, Fe मतलब FeSO4 प्लस कॉपर। सेकेंड में भी सेम CuSO4 प्लस Fb मीन्स लीड, सो यहाँ पे क्या होगा, लीड सल्फेट PbSO4 प्लस Cu। आई होप समझ में आया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब इन अ रिएक्शन the reaction in which the place of the ion of a less reactive element in the compound is taken by the another more reactive element by the formation of its own ion, it's called displacement reaction। definition as it is same by हट करना है, बट समझने के लिए याद रखो कि जो कंपाउंड्स रहेंगे उस कंपाउंड्स में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसे कौन रिप्लेस करेगा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now double displacement reaction, the reaction in which the ion is reactant are exchanged to form a precipitate are called double displacement reaction। सो कहीं किसी भी रिएक्शन में अगर मैच द फॉलोइंग आया है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो अगर देखोगे प्रेसिपिटेशन का साइन है मतलब एरो टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एरो टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब इट्स वो प्रेसिपिटेट शो करता है। एरो टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन इट शो द प्रेसिपिटेट, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एरो शो कर रहा है मतलब वो प्रेसिपिटेट है, तो डायरेक्टली लिखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स है, सिल्वर नाइट्रेट react with sodium chloride, it form a silver chloride and sodium nitrate। so arrow का साइन दिख रहा है, that is the precipitate। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में आयन एक्सचेंज करके प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं और उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो मैच द कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल। मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इजी है और इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो लॉजिक याद रखना है, कोई भी चीज़ रट्टा नहीं मारनी है, लॉजिक याद रखना है। पहले हमने क्या पढ़ा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, टू रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाले कॉलम में देखो कौन सा प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है, तो H2CO3 सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है, तो H2CO3 और कॉम्बिनेशन ये दो हो गए। तो अब इसका रिएक्टेंट ढूंढना है, तो रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में H2O प्लस CO2 रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का लास्ट कॉलम देखोगे H2O प्लस CO2, सो H2CO3 हो जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे है प्रोडक्ट, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बस ये और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट एंड टू और मोर देन प्रोडक्ट। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट क्या हुआ, 2AgCl, सो प्रोडक्ट में क्या होगा 2GCl2, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी मैंने बताया थोड़े टाइम पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रेसिपिटेशन के थ्रू। प्रेसिपिटेशन के थ्रू कैसे होगा वो देखते हैं। ये है प्रोडक्ट में देख सकते हो सेकेंड कॉलम BaSO4 प्रेसिपिटेशन दिख रहा है, मतलब ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। और BaSO4 ZnCl2 कहाँ पे दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला BaCl,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट फाइनली बच गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कॉपर सल्फेट प्लस Fe। तो कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो कौन रिप्लेस करेगा, FeSO4। तो इजीली ये आइडेंटिफाई हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और तो अभी मैंने बताया जो रेड कलर में सर्कल किया है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, जो येलो कलर में सर्कल किया है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो ब्लू में सर्कल किया है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और जो ब्लैक में किया है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो मैंने यहाँ पे ये बताया है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो हमें अगर डेफिनेशन क्लियरली समझ में आया है तो हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रेसिपिटेशन आएगा वहाँ पर, मतलब एरो देखोगे डबल, और उससे रिलेटेड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट आया है मतलब लेस रिएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देखना है कॉपर के साथ। कॉम्बिनेशन मीन्स ओनली सिंगल प्रोडक्ट आएगा तो वो प्रोडक्ट कॉलम में चेक करोगे। डिकम्पोजिशन मीन्स सिंगल रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्टेंट के कॉलम में चेक करोगे। तो इजीली हमें ये मार्क्स गेन कर सकते हैं।